Well, today is the 17th of August, खैर, Monday, आज 17 the day अगस्त है, when the सोमवार। MOU has वह died. दिन जब We एमओयू have की been मौत talking हो about गई। it for a while, हम इस पर कुछ समय से and बात कर I रहे did हैं और आज today इससे पहले have हमारे भू राजनीतिक सैन्य geopolitical विश्लेषक analyst लैरी जॉनसन Larry ने इस पर Johnson बात talk की थी। about it. लेकिन हम I चाहते हैं think कि we आपको एक want to बेहद have सम्मानित a व्यक्ति का perspective दृष्टिकोण भी from मिले, somebody एक अलग दृष्टिकोण unexpected, और एक different महिला का perspective, दृष्टिकोण भी। a woman's हमें perspective गर्व है also, कि हम आपके सामने that अपनी we are proud to योगदानकर्ता bring और to you हमारे चैनल का our हिस्सा contributor, सबरीना को प्रस्तुत part कर of our रहे हैं, channel, जो यहाँ स्टूडियो में Sabrina, मौजूद है। who is और here मैं आप in सभी को the आमंत्रित studio, करना चाहूँगा and कि आप I इन्हें would भी like सुने, to ताकि आपको ये invite all जानकारी of हो you to कि listen to इस her as क्षेत्र में well, सम्मानित so हर that व्यक्ति you क्या are सोचता है, informed about क्योंकि how हर किसी का अपना everybody अलग who's नजरिया होता respected in है। this field thinks, तो because they सबरीना, have their चैनल own में आपका unique स्वागत position. है। So कृपया शुरू welcome कीजिए। Sabrina to the channel. Please go ahead. Yeah, thank you so much. So, big things that are happening हाँ, right now. आपका Obviously, बहुत of बहुत course, we know the धन्यवाद। MOU is dead, तो as इस you वक्त बड़ी mentioned घटनाएं हो रही हैं। earlier. जाहिर है, जैसा कि Iran आपने पहले has बताया, हमें issued a पता है कि statement. एमओयू खत्म There's हो a चुका couple of है। things that is happening. Number ईरान one, ने एक बयान जारी there किया was है, a कुछ report बातें from हो the रही हैं। IRGC that पहली they बात, believe आईआरजीसी that की एक रिपोर्ट Qatar आई है। has उनका मानना है कि कतर ने captured ईरान के 3 3 पायलटों of को पकड़ लिया Iran's है। pilots. यह मामला कई Now, this हफ्ते goes पहले के एक back मिशन to से जुड़ा है। a mission from लेकिन weeks ईरान का ago. ना है कि उनका मानना है But कि ये पायलट Iran वापस is नहीं saying लौटे that हैं। they believe मूल रूप से these 4 pilots have पायलट not थे, returned. उनमें से एक की There were मौत हो 4 गई। originally. बाकी One 3 of के them बारे में has ईरान का मानना died. है कि कतर ने The बंधक other बनाकर रखा 3, हुआ है। Iran कतर ने believes कहा है that कि आसानी Qatar है। is holding those लेकिन मैं लोगों को pilots यह भी आगाह करूंगा कि hostage. वे अख्तर की बातों पर Qatar भरोसा has करने में announced सावधानी that बरतें। that is not the आपको case, याद but रखना होगा कि उत्तर also I पश्चिमी would caution रेशो नई people साथ खाथ to और believe what strawo Qatar tawi says. You streng. have to remember they are Isliet tied thikt in a a legal hand matters mess. nealer. And Qatar is basically a puppet of the United States government, so you just have to keep that in mind. But the IRGC issued a written लेकिन statement about आईआरजीसी ने that. इस बारे So में एक there's लिखित that बयान जारी aspect, किया है। and that leads तो me ये एक into पहलू है this new और इससे मैं statement ईरान from के इस नए Iran, बयान पर where आता they हूँ, are saying जिसमें that वे they कह are रहे going हैं to कि अब go वे on the आक्रामक रुख offensive. अपनाएंगे। They are not वे अब going सिर्फ to play बचाव नहीं defense करेंगे anymore. और मूलतः And अमेरिका that और they're इजरायल का basically going to खेल play उन्हीं के the खिलाफ Israel's खेलेंगे। game against वे them. कह रहे हैं कि अगर ये They are नाकेबंदी saying खत्म that नहीं if हुई, this blockade अगर does not अमेरिका की end, if the नाकेबंदी U.S. खत्म blockade does नहीं not हुई, तो end, पूरी there तरह will से be युद्ध an होगा। all-out war. सोमवार को जो This is the जानकारी information सामने आ that रही is है, coming through the वो यही है। pipeline और इससे on मैं मार्जरी Monday. टेलर ग्रीन के उस बयान And पर आता that हूं leads जो me अभी to the आया है, statement that just क्योंकि came ये from बहुत Marjorie बड़ी Taylor बात है। Greene, मार्जरी because this टेलर is a ग्रीन big ने one. कहा है, और ये Marjorie एक्स Taylor तथा Greene दूसरे has प्लेटफॉर्मों said, पर भी and this है, is on कि X and रणनीति other बैठकों में platforms as ईरान पर well, परमाणु they हथियार are इस्तेमाल करने discussing की चर्चा using हो रही है। nuclear weapons on हाँ, आपने Iran's सही पढ़ा, strategy ये सच है। meetings. मैं अटकल नहीं लगा Yes, रहा you हूँ, read that मुझे correctly. पता It's है। real. I'm not speculating. I know, and it's pure evil. Trump and और his ये पूरी तरह administration बुराई है। were told by ट्रंप our और own उनके प्रशासन intelligence को that हमारी अपनी Iran खुफिया was एजेंसियों ने nowhere बताया था near creating कि a nuclear ईरान weapon. परमाणु हथियार बनाने के Israel said the बिल्कुल same करीब भी नहीं line. था। It's repeated for फिर decades. इजरायल ने भी वही बात Iran is कही। only weeks दशकों से away. यही दोहराया So जाता we रहा है, bombed anyway, ईरान बस killed कुछ their हफ्तों की दूरी leaders, पर the है। innocent children फिर भी in the हमने school, बमबारी and की, Iran उनके hasn't been नेताओं को told straight और on एक the स्कूल news में ever निर्दोष बच्चों since को and मार punished डाला। the reason और तब से they ईरान ने were होर्मुज Egypt for their जलडमरू part मध्य पर नियंत्रण in रखा it. है और She इसमें goes अपनी on to भूमिका के say, लिए पूरे क्षेत्र को सजा दी Trump है। promised no वह more आगे foreign कहती हैं, wars, but may ट्रंप ने actually वादा be the किया one था who कि अब delivers कोई some विदेशी nuclear युद्ध नहीं होगा, bombs. लेकिन This is a शायद वही statement व्यक्ति that was परमाणु shared प्रलय by लेकर आए। her ये today, बयान उन्होंने Monday, आज सोमवार को एक्स on पर साझा X. किया है। For जिन्हें those नहीं who are not पता, aware, उनके लिए Marjorie बता दें Taylor कि Greene मार्जरी टेलर is ग्रीन pretty close सीआईए के with पूर्व former सदस्य जो कैंट के CIA काफी करीब हैं, member जो कैंट Joe उनके साथ Kent, काम कर रहे हैं, who is और जाहिर है collaborating थॉमस alongside मैसी her. और टकर And then, of कार्लसन के course, साथ Thomas Massie and मिलकर Tucker अमेरिका में एक Carlson तीसरी to राजनीतिक try to पार्टी शुरू start करने की a कोशिश कर रहे हैं। third political party in the United States. So she is close तो वे to एक ऐसे someone व्यक्ति के करीब who हैं जो is पहले former खुफिया तंत्र में रहा है, intelligence. और And यही जानकारी this is रिपोर्ट the की जा रही information है। that is being reported. Of course, the बेशक White व्हाइट House हाउस is इसे trying to नकारने की deny कोशिश this, कर रहा है, but a leak लेकिन happened कहीं न कहीं से somewhere, जानकारी and लीक that's how हुई this information और got इसी out. तरह So ये the बात बाहर fact आई। that Iran is saying तो that they're ईरान going का to go ये on the कहना offensive कि वह आक्रामक रुख speaks अपनाने जा रहा है, volumes मेरा मतलब
मतलब है। इस वक्त सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे लोगों के बीच जो बातचीत हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ये बहुत कुछ खिंचता है। अमेरिकी सरकार का ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर विचार करना अभी, और ये पहली बार कि ये बात उठी है। हमें मध्य पूरे स्वभाव गीत सिम्बी वो खंडित स्टिंग mess here in the Middle East. Well, Sabrina, I can खैर सबरीना, मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ और इसमें थोड़ा और संदर्भ भी जोड़ सकता हूँ
क्योंकि हमें भी ये बात जानकार सूत्रों से सुनने को मिली। उन सूत्रों ने हमें बताया कि ट्रंप सप्ताहांत में कैंप डेविड में थे, जैसा कि सब जानते हैं, और उन्हें बताया जा रहा था कि युद्ध कहीं नहीं जा रहा है, कि वे घिर चुके हैं और उनके पास इज्जत बचाए हुए बस पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जाहिर है वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें हारा हुआ कहा जाएगा, और वह हारा हुआ नहीं कहलाना चाहते जबकि वह हारे हुए हैं। वह जन्मजात हारने वाले हैं, लगातार हारते रहते हैं लेकिन हर बार बचा लिए जाते हैं। खैर, जानकार सूत्रों ने हमें बताया कि उन्होंने ये विचार उठाया कि हम उन पर परमाणु बम क्यों नहीं फेंक सकते। उन पर एक नहीं, कई परमाणु बम। और रक्षा प्रमुख जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन ने कहा कि यह बिल्कुल हास्यास्पद और बेवकूफ़ी भरा होगा और उन्हें पीछे हटाया। तो उन्हें पीछे हटाया गया, और ये दूसरी बार था जब उन्होंने ये बात उठाई है। मेरा मतलब है, उनके दिमाग में, आप जानते हैं, वो सुरक्षित हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है। तो फिर किसे परवाह है अगर 10 लाख लोग मर जाएं और होर्मुज जल डमरूमदय हमेशा के लिए प्रदूषित हो जाए, ताकि वहां से कोई जहाज न गुजर सके, ताकि दुनिया की तेल आपूर्ति का 1/4 वहां न पहुंच पाए जहां उसे पहुंचना है, ताकि उर्वरक दुनिया की उन सभी जगहों तक न पहुंच सके जहां खाना उगाया जाना है, जहां हीलियम उन जगहों तक न पहुंचे जहां आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए हीलियम की जरूरत है। उसे इनमें से किसी बात की परवाह नहीं है। मेरा मतलब है, जब आप एक भ्रष्ट अपराधी बुल्गारियाई को चुनते हैं, और वह है भी यही, तो आपको यही मिलता है। वह परमाणु बम फेंकना चाहता है क्योंकि आप जानते हैं वह घिर चुका है, वह पूरी तरह घिर चुका है। इसलिए मैं भी इसकी पुष्टि कर सकता हूं, और मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आपने अभी जो कहा है वह वास्तव में सच है। सिर्फ मार्जरी टेलर ग्रीन ही नहीं, बल्कि युबारिस मॉमर ने बर्कनर ब्रेफ हॉर्स सू से भी मिली है, जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन से ये भी। हाँ, ये सचमुच बहुत डरावना होता जा रहा है। एक चेतावनी भी जारी की जा चुकी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में उर्वरक की स्थिति और इस वक्त वहां की नाकाबंदी के कारण 2027 में खाद्य संकट हो सकता है। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसे कितने समय तक खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त मैं उनसे किसी भी बात की उम्मीद कर सकता हूँ। कथित तौर पर वह चाहते थे कि दक्षिण कोरिया यहाँ दखल दे और इसमें शामिल हो, और अब वे वहाँ भी धमकियां दे रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए कि ईरान में इस युद्ध को लेकर वैश्विक मंच पर क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंधों के आधार पर मुझे इस बात से खुशी है कि अमेरिका बहुत पहले दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लेने पर सहमत हो गया था। ये अभ्यास न सिर्फ महंगे हैं, जिनकी लागत का बड़ा हिस्सा अमेरिका उठाता है, बल्कि ये ऐसे देश को पूरी तरह अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भी भेजते हैं, जो जब तक ट्रंप, यानी यहाँ वे खुद अपनी बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, तब तक गैर धमकीपूर्ण और सम्मानजनक रहा है। इसलिए और इस तथ्य के आधार पर कि इन्हें रद्द करने में अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ को निर्देश दिया है कि दक्षिण कोरिया में संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफी हद तक कम किया जाए। वैसे थोड़ा असंबंधित है, लेकिन मैंने हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से पूछा कि क्या वे ईरान के इस्लामिक गणराज्य के परमाणु निरस्त्रीकरण में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे। उन्होंने कहा, नहीं धन्यवाद। तो अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से उत्तर कोरिया के किम जोंग उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया ने ईरान को रोकने के लिए दखल देने का विकल्प नहीं चुना है। दोस्तों, ये पर्दे के पीछे वास्तव में यही सब हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से अच्छा चेहरा पेश कर रहे हैं, और मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि उनके बहुत से समर्थक इस झांसे में आ रहे हैं। वे उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि ईरान हार रहा है,
supporters are falling for it. He's convincing them that Iran is losing. He's convincing them that he has the upper hand. वो उन्हें यकीन दिला रहा है कि उसका पलड़ा भारी है, लेकिन पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले दूसरे देशों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। वह अब भी उन्हें आप जानते हैं, ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इससे यही दिखता है कि बड़ी तस्वीर में उन्हें पता है कि अमेरिका हार रहा है। उन्हें पता है कि अमेरिका ईरान को हरा नहीं सकता, इसलिए वह अब भी सक्रिय रूप से दूसरे नेताओं को यहाँ दखल देने और उनकी मदद करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई है कि क्योंकि वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं, वह एक बार फिर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इजरायल जल्द ही फिर से ईरान पर हमला करने की कोशिश करेगा ताकि ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए। और फिर ईरान के उस बयान को भी देखिए जिसमें उसने कहा कि वह अब आक्रामक रुख में है। हो सकता है बात वहां तक पहुंचे ही नहीं, यानी ईरान ही शायद पहला वार करे या ना पुश गोई मुझे निस्बिंदा लेकिन नाना स्मिंथी वर्बो या हाउस सेपरेट आउट साना स्वाफ टॉपिक गुजे स्टुअन आज दे उन जहाजों से ऑर्बिट टियारिंगन हमने पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन के बारे में बात की थी और उस जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स की शिकायतों के बारे में भी, लेकिन अब दूसरे जहाज़ों से भी और शिकायतें आ रही हैं, जैसे यूएसएस बॉक्सर से। वहाँ के क्रू मेंबर्स कह रहे हैं कि उनके पास स्वच्छता से जुड़ी चीज़ें भी खत्म हो रही हैं, उन्हें खाने पीने में भी दिक्कतें हो रही हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है और अब माता पिता भी इसमें शामिल हो गए हैं। वे मीडिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके बच्चे उनसे कह रहे हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। तो जाहिर है ये अमेरिकी की तरकासनल और ब्रह्म्स प्रशासन कैम्स एक वही स्वग बहुत ही खराब ठास वश्रेंग ठीक। लेकिन इससे ये भी साफ होता है कि उनके पास कोई योजना नहीं है। जो जहाज बस वहाँ खड़े हैं वे असल में सिर्फ डराने धमकाने के लिए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन बस वहीं खड़ा है। अब कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट मीडिया के जरिए ये शिकायतें सार्वजनिक होने के बाद उसे वहां से निकलना था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी जगह लेने के लिए एक और जहाज आने वाला है। दोस्तों, यहाँ कोई योजना नहीं है, वह बस अंदाजे से काम कर रहा है और मुझे लगता है कि वह ज्यादा आक्रामक इसलिए होता जा रहा है क्योंकि जनरल और दूसरे लोग उसका ध्यान इस बात की ओर दिला रहे हैं कि आप युद्ध को यूं ही अंदाजे से नहीं चला सकते, खासकर ईरान जैसे देश के साथ युद्ध। ईरान बेहद शक्तिशाली है। बेकाबू होना ही सही शब्द है, सबरीना अबू। वह शुरू से ही बेकाबू था और अब तो पूरी तरह बेकाबू हो गया है। तो सबरीना, मेरे पास कुछ अतिरिक्त रिपोर्टिंग है जो मैं हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं, और वो यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी गंभीर रूप से घायल हुए थे। वह पिछले सर्वोच्च नेता के बेटे हैं और ईरान का नेतृत्व करने के लिए फिर से चुने गए थे। उनके संविधान के अनुसार वही सर्वोच्च नेता हैं। तो अब वह स्वस्थ हो चुके हैं और ठीक हैं। उन्होंने कमान संभाल ली है। वह हमेशा अपने पिता की तुलना में ज्यादा कड़े रुख वाले रहे हैं। उनके पिता 80 के दशक में थे या 70 के आखिरी वर्षों में, और अमेरिका का सामना करने के लिए उतने उत्सुक भी नहीं थे। आप जानते हैं, 50 साल के प्रतिबंध। ये देश 50 साल से प्रतिबंधों के तहत जी रहा है, जो लगभग उतना ही समय है जितने समय से ये नेता इस धरती पर है। तो किसी भी हालत में हमारी रिपोर्टिंग यह है कि अब वह एक शक्तिशाली शख्सियत के रूप में उभरा है। उसने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। उसका दाहिना हाथ मोहसिन रजाई IRGC का प्रमुख है, जो IRGC को नियंत्रित कर रहा है। IRGC ईरान की एक बेहद शक्तिशाली सैन्य ताकत है, और अब उसने राष्ट्रपति, जो एक नागरिक नेता है, पेजेशकियन के साथ भी अपने रिश्ते सुधार लिए हैं। उसने संसद के स्पीकर, जो ईरान में तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं,
के साथ भी अपने संबंध सुधार लिए हैं और उसने इराकी के साथ भी अपने रिश्ते सुधार लिए हैं। अब उनमें एक एकता है और वे इस बात पर एकजुट हैं कि ईरान लगातार प्रतिबंधों के अधीन न रहे। इसलिए वे बार बार ये कह रहे हैं, हम इससे थक चुके हैं, अब हम रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहेंगे, अब हम आक्रामक रुख अपनाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सारे जहाज जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और नौसैनिक नाकेबंदी बना रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध की कार्रवाई है, उनसे निकलने के लिए हम एक तरफा कदम उठाएंगे। और इसका मतलब यह हो सकता है कि वे 1 या 2 जहाज डुबो दें और उनमें ऐसा करने की क्षमता है। मेरा मतलब है, यही वजह है कि ये सारे जहाज ईरान से 300-500 किलोमीटर दूर हैं, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास। ट्रंप खुद को होर्मुज जलडमरूमध्य का मालिक बताते हैं। हम होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का हिस्सा घोषित कर देंगे। उनका एक और बेतुका भरास भरा बयान था, लेकिन ये जहाज दूर हैं क्योंकि सैन्य अधिकारी जानते हैं कि अगर वे इतनी दूरी के भीतर आ गए जहां ईरान उन्हें निशाना बना सकता है, तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबरीना, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सचमुच बहुत बहुत बुरी स्थिति में हैं। मेरा मतलब है, हम शांत समुद्र को देख रहे हैं और ये नहीं समझ रहे कि एक तूफान उठ रहा है, एक बड़ा तूफान। A big one indeed. There is new वाकई threats as well बहुत बड़ा from मुद्दा Trump है। against Oman. ट्रंप की तरफ से ओमान के खिलाफ नई धमकियां भी आ रही हैं। आज ही ये सामने आया कि अगर ओमान उनके मुताबिक व्यवहार नहीं करता तो वह उस पर फिर से बमबारी करने की धमकी दे रहे हैं। इस वक्त विश्व मंच पर यह शर्मनाक है। इस वजह से उन्होंने अपने कुछ समर्थकों का समर्थन भी खो दिया है। सिर्फ दक्षिणपंथ की ओर झुकाव रखने वाले निर्दलीय मतदाताओं का नहीं, बल्कि अपने कुछ समर्थकों का भी। लेकिन हकीकत यह है कि इस युद्ध की वजह से साल 2027 में अर्थव्यवस्था को लेकर हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा आने वाला है। अगर किसानों तक उर्वरक की आपूर्ति जारी नहीं रहती तो 2027 तक हम मुश्किल में होंगे। और अभी वे लोगों को इसी बात के लिए चेतावनी दे रहे हैं ताकि उन्हें इसका पता रहे। इसे बहुत जल्दी समाप्त करना होगा। हम पहले से ही घाटे में हैं। तो हम पहले से ही घाटे में चल रहे हैं और सप्लाई चेन को वापस उस सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम आमतौर पर होते थे। तेल, उर्वरक और बाकी सब चीजों के मामले में इसमें ही कुछ समय लगेगा। और इसके साथ साथ अगर ये नाकेबंदी भी जारी रही तो हालात सिर्फ और बिगड़ेंगे। मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का सौदे करने का तरीका उनके लिए पहले दूसरे विश्व नेताओं के साथ या किसी और स्थिति में काम कर चुका है, लेकिन ईरान के साथ ये काम नहीं कर रहा है। उन्हें यह बात कठिन तरीके से सीखनी पड़ी कि आप ऐसे देश को धमका नहीं सकते जो इतने सालों से प्रतिबंधों के तहत रहा है। ऐसा देश जिसके पास बेहद उन्नत हथियार हैं, जैसा कि हमने इस पूरे युद्ध के दौरान देखा है। और ऐसा देश जिसके पास दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक हैं। आप प्रतिरोध की इस धुरी को धमका नहीं सकते। और इसके साथ साथ अंसार अल्लाह भी है जो सऊदी अरब पर काफी जोरदार हमले कर रहा है। वैसे जो मैंने देखा है उसके मुताबिक सऊदी अरब ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ वह रक्षा समझौता किया था। फिर भी मुझे अंसार अल्लाह के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं दिखी है। तो याद रखिए, बात यह कही गई थी कि अगर आप उनमें से एक पर हमला करते हैं तो आप उन सभी पर हमला करते हैं, सही? तो जमीन पर हकीकत यही है। अमेरिका में हमारे बहुत से हथियार खत्म हो चुके हैं, हमारे भंडार बहुत कम हो गए हैं और वैसे जेलेंस्की भी अब तक हथियार मांग रहे हैं। यानी अमेरिका में हथियारों की कमी है। इस वक्त ये अच्छी स्थिति नहीं है। सऊदी अरब के पास भी हथियारों की कमी है। आपको पता है किसके पास हथियारों की कमी नहीं है? ईरान। बिल्कुल। न सिर्फ उनके पास कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारी रिपोर्टिंग जो ईरान के भीतर से आती है
ये बताती है कि वे पहले से भी बेहतर और ज्यादा घातक हथियार बनाने में पूरी रफ्तार से जुटे हुए हैं। ज्यादा घातक हथियार क्योंकि उन्हें चीन से समर्थन मिल रहा है, रूस से समर्थन मिल रहा है, पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तानी तकनीशियन ईरान में तैनात हैं, आप जानते हैं, बहुत गुप्त तरीके से, क्योंकि वे नहीं चाहते कि ये सार्वजनिक रूप से पता चले। पाकिस्तान और चीन बहुत करीबी हैं, इसलिए चीन और पाकिस्तान के पास बहुत सा तकनीकी ज्ञान है जो वे आपस में साझा करते हैं और अब वही ईरान तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के रास्ते ईरान में प्रवेश के 6 अलग-अलग रास्ते हैं। entry points into Iran via Pakistan. So Iran is not isolated, not at all isolated. तो ईरान अलग-थलग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कैस्पियन सागर रूस तक जाने का पूरी तरह खुला रास्ता है, ये सच है। मुझे नहीं पता कि ट्रंप नाम का ये आदमी कितना बेवकूफ है, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है। मेरा मतलब है, कोई जन्मजात रूप से इतना मूर्ख ही हो सकता है कि उसे ये समझ ना आए कि उसकी नौसैनिक नाकाबंदी असल में उसी की नाकाबंदी कर रही है। वह खुद को उन चीजों से रोक रहा है जो उसे चाहिए, जो हमारे सहयोगियों को चाहिए। That he needs, that our allies need. Well, from what I've been hearing, he's not willing to listen to. खैर, जो मैं सुन रही हूँ उसके मुताबिक वो वास्तव में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि आप जानते हैं, परमाणु हथियारों के मामले में पीछे हटने की कोशिश की जाए। लेकिन डीसी से जो बातें मैं सुन रही हूँ, उनके अनुसार वो अपने सबसे करीबी लोगों की भी नहीं सुन रहा है। यह अब सिर्फ इस बात से कहीं आगे बढ़ चुका है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। वह इसे लेकर जुनूनी हो गया है और इस वक्त ऐसा लगता है कि उसका लगभग पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित है। और मुझे सच में लगता है कि इसमें से कुछ ध्यान भटकाने के लिए है। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत इसलिए नहीं हुई कि ईरान संभवतः परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकता था। Could possibly try to get a nuclear weapon. The timing of this just happened to start around the time. इसकी टाइमिंग बस संयोग से उसी वक्त शुरू हुई जब एप्स्टीन फाइलें जारी हुईं, या उनमें से कुछ फाइलें जारी हुईं। उन फाइलों में उनका नाम हर जगह है और उनके दोस्तों के नाम भी हैं। जैसा कि उन्होंने मार्जोरी टेलर ग्रीन से कहा था कि उनके दोस्तों को नुकसान हो सकता है। इसलिए मुझे लगा कि ये लोगों का ध्यान उस मुद्दे से हटाने और उन्हें ईरान पर केंद्रित करने के लिए एक भटकाव था। और मुझे लगता है कि बड़ा सवाल जो लोगों को पूछना शुरू करना चाहिए वो यह है कि जब अगला व्यक्ति सत्ता में आएगा तब क्या होगा। 2028 में क्या होगा, क्योंकि ईरान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया और अब ओमान व उन बाकी देशों को धमकाना जो ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए झुकने को तैयार नहीं है, यह सब रिश्तों को खराब और दागदार कर देता है ना? तो 2028 में व्हाइट हाउस आने वाले अगले राष्ट्रपति को ये सब ठीक करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि अमेरिकी सरकार है और कुछ देशों के कुछ नेता इसे देखते हैं और कहते हैं, खैर यह अमेरिकी सरकार है और अमेरिकी सरकार यही करती है। पश्चिम को इसी तरह के कामों के लिए जाना जाता रहा है। जब ऐसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और ट्रंप प्रशासन के सबसे खराब फैसलों में से एक, लड़कियों के एक स्कूल को मार डालने के दौरान जिसका आयतुल्लाह खामेनी की हत्या करना था, was assassinating Ayatollah Khamenei. Because now everything has क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। ओबामा के दौर का जो परमाणु समझौता था, उसमें भी ईरान को इतना कुछ नहीं मिला था। आप जानते हैं, उसे बहुत ज्यादा स्वायत्तता नहीं मिली थी, लेकिन हालात आज जैसे नहीं थे, अगर आप समझ रहे हैं तो। अब स्थिति ऐसी है कि अगला जो भी आएगा वह इस सब नुकसान को सुधारने की शुरुआत भी आखिर कहाँ से करेगा। और फिर जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए मुझे नहीं पता कि खामेनी का बेटा ऐसा करने के लिए तैयार भी होगा या नहीं। अब हम एक अलग नेता के साथ काम कर रहे हैं और ये सब काफी हद तक रोका जा सकता था अगर अमेरिका और इजराइल ने अयातुल्लाह खामेनी की हत्या करने का फैसला किया होता। इसलिए सिर्फ व्हाइट हाउस में नेता बदल जाने से हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये डरावनी स्थिति है सबरीना, बहुत ही डरावनी स्थिति है। पहले
कल दिन में जब हम अपने संस्थापक सदस्यों में से एक सम्मानित सैन्य विश्लेषक से बात कर रहे थे, तो वे कह रहे थे कि उन्हें लगता है ये वैसा ही है जैसा उस बड़े सुनामी के आने से पहले थाईलैंड में हुआ था। लोग समुद्र तट पर थे, वे समुद्र को पीछे हटते हुए देख रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर अचानक 40 फुट ऊंची पानी की दीवार वाली सुनामी ने सब कुछ निगल लिया। अब अगर ये मूर्ख किसी तरह, मुझे नहीं पता कि वह ये कैसे करेगा, ईरान पर परमाणु बम गिरा देता है, तो हमारी समझ के मुताबिक और उस जानकारी के आधार पर जिसे जानने का मुझे सम्मान और सौभाग्य मिला है, ईरान के पास बहुत जल्दी परमाणु हथियार तैयार करने की क्षमता है। जल्दी ही यानी, और भगवान ही जाने कि वह परमाणु मिसाइल जाकर कहाँ गिरेगी। वे बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। उन्होंने दिखा दिया है कि वे बिना लड़े हार नहीं मान सकते। तो फिर क्या होगा? मेरा मतलब है, ईरान अपना परमाणु हथियार किसी जगह पर दाग देता है, शायद इजराइल पर। ईरान में आप जानते हैं, शायद 1 करोड़ लोग मर जाएं। होर्मुज जलडमरू मध्य हमेशा के लिए उर्वरक ढोने वाले जलमार्ग के तौर पर बेकार हो जाए। दुनिया के 25% तेल की बात ही भूल जाए। हीलियम आना बंद हो जाए तो कोई आईसी नहीं बनेंगे। और एलएनजी भी, आप जानते हैं, आ नहीं पाएगी, तो लोगों के पास खाना पकाने के लिए कुछ नहीं होगा। न कुकिंग गैस, न डीजल, न विमानन ईंधन, सिर्फ इस बेवकूफ के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। अभी हम बस इसी बात के लिए लड़ रहे हैं। हम उसके अहंकार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। Yeah, these are things that he isn't really thinking about and doesn't care to. हाँ, ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वो वास्तव में सोच ही नहीं रहा और नहीं सोचना चाहता है। आपको एक उदाहरण दूं। जेरेड कुशनर ने भी अभी एक बयान जारी किया है कि गाजा का पुनर्निर्माण जल्द होगा जब पूरा इलाका गैर सैन्यीकृत हो जाएगा। तो मैं समझाता हूं कि इसका असल मतलब क्या है। गाजा का पुनर्निर्माण तब होगा जब फिलिस्तीनी, असल में इसका यही मतलब है। जेरेड कुशनर ने आगे कहा कि अगर गैर सैन्यीकरण नहीं होता तो इजराइल पूरी रफ्तार से अंदर जा सकता है और बस सबको खत्म कर सकता है। यही वे लोग हैं जो भू राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। जेरेड कुशनर एक निजी नागरिक है। Jared Kushner is a private citizen. He's not a government official. ये कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, लेकिन गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों के भविष्य के साथ क्या होने वाला है, इस बारे में वह बहुत से फैसले कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है। हम मध्य पूर्व में एक पश्चिमी देश के कब्जे की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ ग्रेटर इजराइल परियोजना से भी बड़ा है। दरअसल ये यूरोप तक भी फैलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जेरेड कुशनर और इवांका अल्बानियाइयों से जमीन छीनने की कोशिश कर रहे थे। मेरा मतलब है, वे हाल ही में आइसलैंड में भी थे। वे वहां सिर्फ घूमने फिरने और मजे करने नहीं गए थे। वे जितना संभव हो सके उतना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और लक्ष्य है जायोनिज्म को पूरी दुनिया में फैलाना। अगर आप दक्षिण अमेरिका को दें सेप्टवर्सेस, तो सोशल मीडिया पर एक नक्शा घूम रहा है जिसमें दिखाया गया है कि दक्षिण अमेरिका के लगभग पूरे हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, लगभग पूरे पर। ब्राजील अभी भी बचा हुआ है। वेनेजुएला पर अब लग कब्जा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है, और फिर जायोनी शासन वहां अंदर जाएगा। तो ये जायोनिज्म का पूरी तरह से भू राजनीतिक विस्तार है। ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, ये सिर्फ परमाणु हथियार की बात नहीं है। आखिरकार असल मुद्दा यही है, और मेरा मानना है कि जितने ज्यादा लोग इसे समझेंगे, एंड बाकी सभी के लिए टफ टू प्रस्मता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब लोग कहते हैं कि समस्या बेंजामिन नेतन्याहू है, तो वे गलती करते हैं। बात सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं है। ये ज़ायनिज्म है और इसका फैलाव है बेंजामिन नेतन्याहू के बिना भी, और इजराइल में उनके लिए चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, वे किसी और कठपुतली को ले आएंगे जो यही सब जारी रखेगा, क्योंकि सबका एक ही मकसद है, और वह है ग्रेटर इजराइल परियोजना का विस्तार करना, सिर्फ मध्य पूर्व में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और मैं चाहता हूं कि हर कोई इसे पूरी तरह समझे।
तो मुझे लगता है कि जो होना होगा वह यह है कि उन प्रदर्शनों को फिर से लौटना होगा। हम 2 साल तक नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शनों में बहुत अच्छा कर रहे थे। हमें बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर के विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने होंगे, और ये सिर्फ आप जानते हैं गाजा और निश्चित रूप से ईरान के बारे में नहीं हो सकता। ये वास्तव में यहाँ नियंत्रण के अंतिम रूप यानी जायनिज्म के बारे में होना चाहिए। बिल्कुल सबरीना, यही तो हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। और यही तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मक्का समझौते के पीछे की एक वजह है। और अब हमें जानकारी मिली है कि मिस्र भी उसमें शामिल होने जा रहा है, क्योंकि वे सभी बहुत डरे हुए हैं कि ये उनके दरवाजे तक आ पहुंचेगा, इसलिए वे पहले से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बताएं सबरीना, आप इतिहास की छात्रा हैं, ये उस चीज से कैसे अलग है जो हिमलर और उन तमाम नाजी अपराधियों ने करने की साजिश रची थी और कुछ हद तक करके भी दिखाया था, लेकिन जिसे अब ट्रंप आगे बढ़ा रहा है एक ऐसे मूर्ख आदमी के रूप में जिसे नेतन्याहू, कुशनर और बाकी सभी लोग रस्सी पकड़कर घुमा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस उस तक पहुंचने का एक धीमा रास्ता है। हम जानते हैं कि फिलिस्तीनियों को सालों से मारा गया है, पीटा गया है और भूखा रखा गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सब रातों रात हुआ। नकबा शुरू होने के समय से ही ये दशकों से चलता आ रहा है, और क्योंकि ये धीरे धीरे किया गया, मुझे लगता है कि दुनिया के लिए इस पर आंखें मूंद लेना कुछ हद तक आसान रहा। फिर जाहिर है 7 अक्टूबर के बाद ज्यादा लोग ध्यान देने लगे। कुछ लोगों को तो 7 अक्टूबर के बाद तक ये भी नहीं पता था कि गाजा क्या है ना? इसलिए क्योंकि ये नरसंहार का एक धीमा रूप था और दशकों तक फैला रहा, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को पता था कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ क्या हो रहा था। मुझे लगता है कि ये जानबूझकर किया गया था। मुझे लगता है कि इज़राइल ने ये इस तरह किया कि लोगों को ये उतना साफ न दिखे। फिर यहाँ नेताओं के साथ होने वाली ब्रेन वॉशिंग और प्रोपेगेंडा भी है। इनमें से कुछ नेता जैसे ही वे पद पर आते हैं, AIPAC उन्हें इज़राइल घूमने के लिए भेज देता है। वे गाजा की यात्रा पर नहीं जाते। वे ये नहीं देख रहे होते कि फिलिस्तीनी किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। तो ये प्रोग्रामिंग बहुत शुरुआती दौर से ही शुरू हो जाती है, और फिर उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से जानते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वे इस पर चुप रहने का चुनाव करते हैं क्योंकि वे अपना राजनीतिक करियर बनाना चाहते हैं। हाल की प्राइमरी चुनावी प्रतिस्पर्धाओं में अब तक वह कामयाब नहीं हो रहा है। ज्यादा ज़ायनिज्म विरोधी फ्री फिलिस्तीन उम्मीदवार उन उम्मीदवारों को हरा रहे हैं जो EIPAC और आप जानते हैं जे स्ट्रीट वगैरह से बहुत सारा पैसा ले रहे हैं। तो चीजें बदल रही हैं, और 7 अक्टूबर के बाद अगर वह नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाते। हम में से बहुत लोग छतों पर चढ़कर चिल्लाते रहे हैं कि इज़राइल क्या था और इज़राइल क्या कर रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ और उसके बाद हुए जनसंहार का दुनिया भर में लाइव स्ट्रीम होना, यही वह चीज़ थी जिसने ज़्यादा अमेरिकियों को जो वहाँ की स्थिति से अनजान थे उसके बारे में जागरूक किया और फिर चिंतित किया। और इसलिए जब ये चीज़ें लंबे समय तक खिंचती रहती हैं तो लोगों के लिए इन्हें नज़रअंदाज करना आसान हो सकता है। और फिर बहुत से अमेरिकी, फिर से कहूँ तो जब तक कोई बात सोशल मीडिया पर जोर शोर से नहीं फैलती, हम भू राजनीति पर उतना ध्यान नहीं देते हैं ना। बहुत से अमेरिकी इस पर ध्यान देते हैं कि यहीं अमेरिका में क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, और जब तक किसी सीधे मामले के सामने कैमरा न लगा हो और उसे कई प्लेटफॉर्मों पर जोर शोर से न फैलाया जाए, भू राजनीतिक मुद्दों के बारे में उन्हें शायद पता भी न चले कि ऐसा कुछ हो रहा है, जब तक कि उनकी भू राजनीति में बहुत दिलचस्पी न हो। और यही हकीकत है, और इज़राइल भी यही चाहता था।
reality. And that was the way that Israel wanted. They were actually doing pretty well at that for quite some वे time. दरअसल just काफी keeping समय everyone तक इसमें ठीक quiet ठाक and सफल रहे, hush. बस इसे Meanwhile, चुपचाप people have been दबाकर fired. रखते रहे. People have इस lost their बीच jobs. यहाँ लोगों को We're नौकरी speaking से now निकाला गया against है. Israel, right? So इज़राइल it's के just खिलाफ बोलने पर लोगों ने it's अपनी the नौकरियां खो दी same हैं, है ना? type of तो behavior बस ये उसी that तरह का the व्यवहार है Nazis जैसा did. नाजियों ने किया था. It's just now being फर्क done सिर्फ by इतना a है different कि अब ये group of लोगों का एक people. अलग समूह कर रहा But है, because we लेकिन have हमें been इस तरह प्रचारित propagandized किया to गया है believe कि हम माने that कि वह समूह that कोई group of गलत काम कर people ही नहीं सकता can और वह do no जमीन wrong. उन्हीं की है. And इसलिए जैसे ही आप इस that बात land का विरोध belongs करना to शुरू them. करते हैं, आप Once पर you start तरह तरह pushing के back लेबल on लगा दिए that, जाते हैं. और you're जैसा मैं you're जैसा getting all different कुछ लोग types इसकी वजह से of अपनी labels. नौकरियां भी And खो again, देते like I हैं. said, some people lose their jobs because of that. That's what we're under right now. And then we have फिलहाल हम इसी दौर से गुजर रहे हैं. और फिर अमेरिका की सरकार में एक प्रशासन है जो खुले तौर पर कह रहा है कि वह उन संगठनों और कार्यकर्ताओं की बैंकिंग सुविधाएं बंद करना और उनकी फंडिंग रोकना चाहता है जो इज़राइल की आलोचना करते हैं. आज हम यहीं खड़े हैं. इसलिए अगर भी लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खड़े होने की ज़रूरत थी, तो वो समय अभी है. हो सकता है यह आपका सबसे बड़ा मुद्दा न हो, हर किसी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन वे आमतौर पर एक मुद्दे से शुरू करते हैं और फिर दूसरे मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं. तो बस कुछ ही समय की बात हो सकती है कि वे उस मुद्दे के पीछे पड़ जाएं जो आपके लिए सबसे अहम है, और वहां भी आपको सेंसर करना और चुप कराना शुरू कर दें. And they start to censor and silence you there as well. Well, खैर सबरीना, इसका अंत कैसे होगा? ये एक बेहद बेहद क्रूर चक्र है और ट्रंप इससे निकल नहीं कर. मेरा मत से वो सचमुच फंसे हुए हैं. हम इस चैनल पर गद्दारी कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे सूत्रों की जानकारी है जो जमीन पर मौजूद वास्तविक हालात पर सीधे नजर रखते हैं, और वे हमें बताते हैं कि ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं. उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है. उनके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचा. वे सभी तबाह हो चुके हैं. सिर्फ 3 ठिकाने किसी किसी रूप में अभी भी मौजूद हैं जहां लोग कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं. इसलिए race, कोई distinct small and empowered train negotiates. इनके पास कोई रडार नहीं है, कोई रडार नहीं. He has no radar. No radar. So he's blind basically. He has these ships. तो वह मूल रूप से अंधा है. And उसके पास ये जहाज वहां मौजूद हैं और वे क्या करने वाले हैं. अब हर किसी ने जहाजों पर मौजूद समस्याएं देख ली हैं. ये सिर्फ अब्राहम लिंकन की बात नहीं है. जाहिर है दूसरे नाविक भी इतने ही लंबे समय से वहां रहे हैं, तो यह आदमी फांसा हुआ है. वह परमाणु हथियारों की बात कर रहा है. अमेरिकी शायद ध्यान न दे रहे हों, लेकिन जब वे किसी भी स्टेशन पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो गैस की कीमत पर उनका ध्यान जाता है. बहुत जल्द उन्हें बाकी सभी चीजों की लागत में भी बड़ी बढ़ोतरी दिखने लगेगी, खासकर खाने पीने की चीजों में. तो इसका अंत कहाँ होता है सबरीना? इस पर आखिरी अध्याय को लेकर आपका क्या विचार है? I think this is where we'll have to reach for. मुझे लगता है कि यहाँ हमें अपने टूल बॉक्स के, आप जानते हैं, 2 औजारों का सहारा लेना होगा, है ना? उनमें से एक औजार है चुनावी राजनीति, दूसरा है प्रत्यक्ष कार्रवाई. तो चलिए चुनावी राजनीति से शुरू करते हैं. मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं. इस बार चुनाव लड़ रहे जो भी राजनेता इजराइल समर्थक लॉबी से किसी भी तरह का पैसा ले रहे हैं, उन्हें वोट देकर बाहर करना होगा. यही बड़ी बात है ना? और हमने देखा है कि इनमें से कुछ लोग जो वह पैसा नहीं ले रहे हैं और इस तरह की चीजों पर खुलकर बोल रहे हैं, वे प्राथमिक चुनाव पहले ही जीत चुके हैं. तो ये किया जा सकता है. हम देख रहे हैं कि अब इसके होने की संभावना शायद 10 साल पहले की तुलना में ज्यादा है ना? तो हमें ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से बाहर करना होगा, प्रतिनिधि सभा से भी और सीनेट से भी. फिर नवंबर आएगा जब मिड टर्म चुनाव होंगे, ये आम चुनाव होंगे. इन लोगों को जीत कर आना होगा. जो लोग AI पैक का पैसा नहीं ले रहे हैं, उन्हें आना होगा. जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, उन्हें आना होगा. और फिर यही होने वाला है. तो जनवरी में वे शपथ लेंगे और उम्मीद है कि ये उतना लंबा भी नहीं चलेगा.
जितना मैं कह रहा हूं कि ये युद्ध नहीं चलेगा, लेकिन जनवरी में उन्हें वॉर पावर्स रेजोल्यूशन फिर से पेश करना होगा। और अगर हमारे पास आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस मामूली बहुमत चाहिए। यही चाल है, बस मामूली बहुमत चाहिए। आपको सिर्फ सदन में इतने लोग चाहिए कि इसे पास कर सकें, जो वे पिछली बार कर भी चुके थे। to pass it, which they already did last time. And then the Senate is going to be the key. और फिर सीनेट अहम होने वाली है। कुछ लोग उन सीनेट सीटों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो इजराइल समर्थक नहीं हैं। यही तय करने वाला कारक होगा। थॉमस मैसी ने जो वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पहले आगे बढ़ाया था, उसे पारित करना और इस युद्ध को खत्म करना। यह एक तरीका है, चुनावी तरीका। दूसरा तरीका है सीधी कार्रवाई। मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन जिस तरह लोगों के पीछे पड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे लोग अभी थोड़ा डरे हुए हैं। लेकिन इस वक्त सड़कों पर हमारे लाखों लोग होने चाहिए, यानी 1 लाख। आपको दोनों चीजें चाहिए। आपको नेता चाहे कांग्रेस में ऐसे लोग चाहिए जो सही काम करने को तैयार हों। और आपको सीधी कार्रवाई भी करनी होगी। चुनावी राजनीति के बाहर से दबाव बनाना होगा, लोगों पर इस तरह दबाव बनाए रखना होगा और कहना होगा, सुनिए, अगर आप ऐसे वोट देते रहे जिससे ये युद्ध चलता रहे, तो हम आपको वहां से आपके पद से हटा देंगे। तो ये दोनों चीजें एक साथ करनी होंगी। सच कहूं तो अब आप जो कुछ राजनेताओं को देख रहे हैं, जैसे सेथ मोल्टन, कि वे एआई पैक से पैसा लेना बंद कर रहे हैं, उसे ठुकरा रहे हैं, या कुछ राजनेता एआई पैक को उसका पैसा वापस भेज रहे हैं, इसकी एकमात्र वजह हम हैं। वजह हम हैं जो बाहर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे एक दिन उठे और बोले, ओह, मुझे गाजा के बच्चों के लिए बुरा लग रहा है। नहीं, वे जानते थे कि ये सब इतने लंबे समय से चल रहा था। यह उस दबाव की वजह से हुआ जो दुनिया ने उन पर डाला था। सिर्फ हम लोगों ने नहीं, अमेरिका में भी लाखों लोग 2 साल तक सड़कों पर उतरे रहे। लोगों ने 2 साल तक ऐसा किया। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा। हम अब कमला हैरिस को भी अपने कुछ रुखों से पीछे हटते और उन्हें बदलते हुए देखना शुरू कर रहे हैं। तो बस, और वैसे उन पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन बात यह है कि बाहरी दबाव के बिना ऐसा नहीं होता, इसलिए वह दबाव बना रहना चाहिए। और फिर दोबारा कहूं तो हकीकत यह है कि आपको उन लोगों को कांग्रेस से बाहर करना होगा। इसी तरह आप बदलते हैं कि लोग इस कानून पर कैसे वोट कर रहे हैं। उस वॉर पावर्स एक्ट को पास कराए और इस युद्ध को खत्म कीजिए। आमीन, सबरीना। और भगवान का शुक्र है कि आपकी जैसी आवाजें हैं और इस चैनल के संस्थापक सदस्यों में योगदान देने वाले दूसरे लोगों की भी आवाजें हैं। हम इसकी वकालत करते रहे हैं, दूसरे लोग भी इसकी वकालत करते रहे हैं। लेकिन आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, और इस बातचीत को उम्मीद भरे अंदाज में खत्म करने का ये एक अच्छा तरीका है कि हम ये कर सकते हैं। उस कॉरपोरेट प्रतिष्ठान के बारे में आप क्या सोचती हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी पर हावी है? वही एकमात्र विपक्षी पार्टी है जो हमारे पास है, और वह ये नहीं चाहती कि ऐसा हो। वह उन लोगों और उम्मीदवारों को दबाने के लिए हर हद तक जाती है जो इस रुख की वकालत करते हैं। मेरा मतलब है, आपने ये प्राइमरी चुनावों में देखा है। आप जानती हैं, वे तराजू का पलड़ा उन लोगों के पक्ष में झुका देते हैं जो ईआई पैक का पैसा लेंगे, जो कॉरपोरेट राजनीति का समर्थन करेंगे, जो युद्ध के पक्ष में किसने फिटस्पन करेंगे सिर्फ इसलिए बिट्स बिफोर बैन उन्हीं जिस बेरबरताई। It's the money. Yeah, you're right. It enriches their pockets. बात पैसे की है। हाँ, आप सही हैं। इससे उनकी जेबें भरती है। ये लोग शर्मनाक हैं, मुझे तो ये घिनौने लगते हैं। लेकिन ये भी ज़ायोनिस्ट होते हैं और ग्रेटर इजराइल परियोजना में विश्वास करते हैं। मैं अपने दर्शकों से लगातार एक बात कहता हूँ, हमें याद रखना होगा कि ये सब पैसे से जुड़ा हुआ है। आज जैसा इजराइल राज्य है और ग्रेटर इजराइल परियोजना की ये योजना पैसे के बिना मौजूद नहीं हो सकती। इसे अरबपतियों का समर्थन हासिल है और अब एक खरबपति एलन मस्क का भी। ये उनका एक निजी पसंदीदा प्रोजेक्ट है। इसलिए पैसे के बिना और मसलन रोथस्चाइल्ड्स जैसे लोगों के समर्थन के बिना And without the support from like the Rothschilds, for example, Yes, you don't absolutely. have it.
ऐसा नहीं हो सकता। इलॉन मस्क जैसे लोगों के समर्थन के बिना इजराइल का एक राज्य नहीं हो सकता। अब उन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके पास है। इसलिए अगर लोग इजराइल के बारे में उस तरह से बात करें तो वे उन्हें चुप करा सकते हैं। ये सारी चीजें एक साथ जुड़नी होती हैं और इसी तरह आपको ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट मिलता है और ये ऐसी चीज है जिसे रोका जा सकता है। मुझे सच में विश्वास है कि इसे रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा होने के लिए लेफ्ट बनाम राइट से आगे बढ़ना होगा और यही उनका सबसे बड़ा डर है। इसी वजह से वे अब कुछ बेचैन होने लगे हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि कुछ युवा रिपब्लिकन इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। यही उनका सबसे बड़ा डर है। वे आखिरी चीज जो चाहेंगे वह यह है कि वामपंथ और दक्षिणपंथ के लोग विदेश नीति पर एकमत हो जाएं, खासकर जब बात इजराइल की हो, और भगवान करे कि इसमें अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी जुड़ जाए। लोग देख रहे हैं और उन्हें लगने लगा है, एक मिनट, क्या हमारी सरकार इजराइल पर उससे ज्यादा खर्च कर रही है जितना यहीं अमेरिका में कर रही है? इसलिए बहुत से लोग ज्यादा सवाल पूछने लगे हैं और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन हकीकत यह है कि इस मुद्दे पर लोगों को इन पार्टी लाइन वाली सोच से बाहर निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का यही रास्ता है। और मेरा मानना है कि थॉमस मैसी और रो खन्ना जैसे लोग साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि वे यही करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? यानी लोगों को बस ये दिखाएं कि इन खास मुद्दों पर हम एक साथ आते हैं और जिन मुद्दों पर हमारी सहमति है उन पर कानून को सदन के पटल पर पेश कराने की कोशिश करें। अगर कांग्रेस के बाकी सदस्य भी इसी तरह काम करते तो वॉशिंगटन डीसी में जितनी अव्यवस्था है उतनी नहीं होती। अब बड़ा पैसा फिर भी मौजूद रहता और वह भी एक समस्या है। हमें चुनावी राजनीति से बड़े पैसे को बाहर करना होगा ताकि अमेरिका में सचमुच स्वतंत्र चुनाव सकें। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त हमारे पास यही स्थिति है। तो सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वह है जमीनी स्तर के लोगों को साथ लाना। हमारी आवाज सबसे बड़ी है। यहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबपति और खरबपति लोग नहीं हैं। हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन वे नहीं चाहते कि आपको इसका एहसास हो। इसलिए उन्हें हमें अलग अलग रखने का तरीका ढूंढना पड़ता है और वे ऐसा ये कहकर करते हैं, ये कट्टरपंथी वामपंथ है, ये कट्टरपंथी दक्षिणपंथ है, और वे हमें इसी तरह बांट कर रखते हैं, क्योंकि अगर ये खेमे नहीं होते तो हर कोई इन साझा बुनियादी मुद्दों पर एक साथ आ जाता और फिर उनका खेल खत्म हो जाता। अरबपतियों और खरबपतियों का खेल खत्म हो जाता। खैर, एक सकारात्मक बात यह है, सबरीना, कि मैंने वियतनाम का दौर देखा है। वो युद्ध जितना भयानक था, उसके खिलाफ रफ्तार बनने में कई साल लग गए। वो चलता ही रहा, चलता ही रहा। लेकिन इस मामले में चीजें थोड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है। भगवान का शुक्र है, आपकी जैसी आवाजों की वजह से ये तेज हो रहा है। उन आवाजों की वजह से जिन्हें हम ट्रांजिशन प्रोटोकॉल में आगे बढ़ा रहे हैं, उन आवाजों की वजह से जिन्हें हमने आज पहले सुना, और दूसरी आवाजों की वजह से भी। इसलिए बातें जनता तक बहुत तेजी से पहुंच रही हैं, और उस मुलम्मे के बिना जो कॉरपोरेट मीडिया हमेशा इनके ऊपर चढ़ा देता है। मेरा मतलब है, वियतनाम युद्ध जितना भी भयावह था, वो चलता ही रहा, चलता ही रहा। उन्हीं झूठों की वजह से, उन्हीं तोड़ मरोड़ कर पेश की गई बातों की वजह से, उन्हीं विभाजनों की वजह से, उन्हीं गढ़ी हुई जीतों की वजह से जो वास्तव में थी ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये उम्मीद का बस है। You exterol. और मैं इस सकारात्मक बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि हमें उम्मीद रखनी होगी। हमें ये कल्पना करने की क्षमता रखनी होगी कि ये खत्म होगा और इससे कुछ अच्छा निकलेगा, यानी जायनिज्म की हार और हर जगह पर कब्जा करने की इजराइल की वैश्विक कोशिश की हार। ये ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है। अगर आपको जो आपने सुना
हमारे वक्ता और विचारक पसंद आए तो कृपया आप पेड मेंबर बनिए। हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए। महीने के $5 जो स्टारबक्स की कॉफी की कीमत से भी कम है। हफ्ते में 2 बार आपको इसी तरह की बातचीत आपके मेल बॉक्स में मिल सकती है। और आप हमें सबरीना हर गुरुवार और सोमवार इसी समय पर सुन सकते हैं, साथ ही दूसरे मेहमानों और इस चैनल के दूसरे संस्थापक सदस्यों को भी। शुक्र है कि ये चैनल दुनिया भर में बहुत बहुत अच्छी तरह बढ़ा है। तो मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबरीना, क्या आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगी? Thank you very much from my side. Sabrina, would you like to say a final word? हैथ इंदे के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैम, और आप मुझे मेरे चैनल Savvy Steps पैसे। Savvy Saps. Thank you very much. Please find her at Savvy Sabs. She बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया उन्हें सेवी सैब्स पर खोजें। वो एक सम्मानित आवाज है, उनकी अपनी अलग आवाज है। इसी वजह से हमने उन्हें आमंत्रित किया और हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि वो यहाँ हैं, क्योंकि वह एक अलग दृष्टिकोण पेश करती हैं। हर किसी का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है और हम चाहते थे कि इस चैनल पर उनका दृष्टिकोण भी हो, हमारे सैन्य विश्लेषकों के साथ साथ और उन दूसरे विचार भी जो हमारे पास हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। हम आपसे फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। धन्यवाद। We shall see you again next week. Thank you.